My name is Malaika Mehboob, and I'm truly delighted to be your host for today's webinar. This session is especially important as Ramadan. This session is especially important as Ramadan brings unique clinical considerations for healthcare professionals managing patients with diabetes. Today's webinar will cover key practical aspects. I am confident this session will provide valuable clinical insights that you can apply in real practice. Before we begin, just a few quick reminders. Please keep your microphones muted during the session. You can drop your questions in the chat box. We will address them in the question answer segment. Make sure to stay till the end. अपना वेरीफाइड ई सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको 5 में से कम 4 सवालात के जवाब देने होंगे। क्विज का लिंक YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, जो अगले 24 घंटे के लिए ओपन रहेगा। इस YouTube वीडियो का लिंक आपको मैथ स्पार्कल्स के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल में दे दिया जाएगा। Please make sure to attempt it within the given time to secure your certificate. It is now my absolute pleasure to introduce our esteemed speaker, Dr. Anam Fazal. Dr. Anam is a clinical pharmacist and pharmacovigilance officer, as well as a dedicated healthcare content creator and educator. With his strong clinical expertise and passion for teaching, she has been actively contributing to professional learning through educational sessions and digital platforms. We are truly honored to have you with us today, Dr. Anam. Without further delay, I would like to hand over the session to Dr. Anam. Ma'am, the virtual stage is. Thank you so much, and Assalamu alaikum to everyone. And as ma'am has introduced myself, I just want to say that if you have any kind of question or queries, kindly write it down. And at the end of the session, we will discuss it so that we can have a healthy session. Now, let's start. So first of all, the challenge is why the dose adjustment is needed for a diabetic patient. As we all know that over 150 million Muslims with diabetes, they fast globally. The three basic risks जो कि हमें एक डायबिटिक पेशेंट के लिए ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, वो है हाइपोग्लाइसीमिया, जिसमें रमजान में उसका इंक्रीज 7.5 हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसमें आपके पास 5% इंक्रीज हो जाता है, डिहाइड्रेशन दैट कैन लेड टू कीटोएसिडोसिस अलोंग विद थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है जब आपका ब्लड थिक हो जाए बिकॉज ऑफ सप्लाई जब कम हो जाए इसमें। नाउ रिस्क स्पेसिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ आईडीएम either they are in red box, yellow box or the green box. One diabetes, pregnant ladies, chronic kidney disease, जिसमें आपके पास स्टेज 4 या स्टेज है, इसमें पेशेंट का क्रिएटिनिन अगर इंक्रीज है 25% से या उसका जीएफआर ड्रॉप है 25% से, तो उसमें हम पेशेंट को किसी भी सूरत नहीं कहते कि आप जो है वो फास्ट ऑब्जर्व करें। मिड में जो येलो वाले ब्लॉक में लोग होते हैं वो होते हैं जो कि सेरेटोबॉक्स के थ्रू जो है उनकी हम डायबिटीज कंट्रोल करते हैं, दे आर इंक्लूडिंग सल्फोनाइलयूरेज या फिर आपके पास इंसुलिन उनकी ट्रीटमेंट चार्ट में होता है। द ग्रीन वन इज ऑफ डायबिटीज टाइप 2 दैट इज मैनेज्ड बाय metformin dipeptyl peptidase D4 inhibitors, or these are known as the gliptins. Okay, I'll try myself कि
नाउ मैंडेटरी ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट, कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हर हालत में जो है आपने पेशेंट को किसी भी सूरत जो है फास्ट रखने नहीं देना। इसके लिए जब पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो या फिर ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो। जब पेशेंट्स के सिम्टम्स हो सिवियर डिहाइड्रेशन, कंफ्यूजन, एक्यूट इलनेस इंक्लूडिंग टेम्परेचर, तो उसमें फिर मैंडेटरी होता है कि आप फास्ट जो है वो ब्रेक कर दें। Now, the most important section of this session is formula for dose calculation. This is a universal formula for dose calculation. आजकल चूंकि आपके पास बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, only just you have to enter the values और वो आपको डोज कैलकुलेट करके दे देते हैं. But in case you are student, so formulas are must to be फॉर्मूला जो है आप मस्त करेंगे कि आप याद कर लें. सो डोज अब ये जो है अगर किलोग्राम के हिसाब से है या वॉल्यूम के हिसाब से है तो आप उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे. डोज वॉल्यूम अगर इट इज इन ml तो दैट is dose per kilogram. It is multiplied by the weight that is in kg and weight of the patient is used. Or divided by concentration. This will give you the answer and then it will be divided by the frequency. तो इससे आपको डोज मिल जाती है. Now, the dose regime. अब हमें डोज रिजीम की जरूरत क्यों है? 24-hour eating cycle is converted to 10-hour eating cycle या फिर 14-hour eating cycle डिपेंडिंग पेशेंट्स जो हैं वो कहाँ से किस एरिया से फास्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज बिगोनाइड्स. बिगोनाइड्स में आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है मेटफॉर्मिन. मेटफॉर्मिन में आपके पास आते हैं टू टाइप्स ऑफ मार्केट में अवेलेबल होते हैं. या तो वो इमीडिएट रिलीज होंगी, either they are extended release. Now, to help you, what is an immediate release? Immediate release are that kind of drugs that are released and absorbed shortly after they are ingested. ठीक हो गया. इसकी जो मार्केट में आपके पास पिल्स अवेलेबल हैं that are 500 मिलीग्राम, 850 मिलीग्राम एंड 1000 मिलीग्राम. जब आप किसी पेशेंट को इमीडिएट रिलीज देते हैं मेडिसिन तो उसको आप सीडीएस में दैट इज 3 टाइम्स में जो है आप उसको उसकी डोज एडजस्ट करते हैं. 2 डोज जो देंगे वो आप उसको अफ्तार में देंगे, यानी 2 मेडिसिन 2 बीवी लेगा वो अफ्तार में और 1 लेगा वो. Hello, ma'am. Your voice is not audible. स्प्लिट डोज में आप इसको 1000 मिलीग्राम एट अफ्तार करते हैं एंड 500 मिलीग्राम आप इसको सुहूर में पेशेंट को दे सकते हैं. बेसिकली मेटफॉर्मिन जो है वो इसका मैकेनिज्म होता है कि इट डिक्रीजेस ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड इट इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी. The basic areas are diarrhea, nausea, and the metallic fluids. ठीक हो गया. फिर next one we have DPP4I. ठीक, इसमें आपके पास आ जाते हैं ग्लैप्टिन. सीटाग्लैप्टिन्स या विल्डाग्लैप्टिन्स होते हैं. They have a very less flow of hypoglycemia. No dose adjustment is needed. So you have to take it after अफ्तार. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्ट कैसे करता है. बेसिकली DPP4 enzyme, it is an enzyme that breaks down hormone GLP-1 in the body. GLP-1 is known as glucagon-like peptide 1. It is an natural incretin hormone secreted by intestine after eating. So it stimulates insulin secretion, it suppresses glucagon release, and it slows gastric emptying.
वो है 25 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम एंड 100 मिलीग्राम। इसके लिए आपको जो है किसी किस्म की डोज की एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है और आप इसको 100 मिलीग्राम पे कर सकते हैं और साथ में वो ले लें। एंड इट इज अ ग्लूकोज डिपेंडेंट, इट हैज अ वेरी लो risk of hypoglycemia. Now, sulfonyl urate. Sulfonyl urate is our steroidogons. मीन्स कि ये जो है इंसुलिन को रिलीज करेंगे, ठीक। तो इसमें जो होता है स्टिमुलेट्स इंसुलिन सिक्रीशन फ्रॉम द पैंक्रियाटिक बीटा सेल बाय क्लोजिंग एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, ठीक है। Hello, ma'am. Hello, जी, ma'am. Am I audible to you? या यू आर 100% audible to me and to my audible. Ma'am, your voice is not clear to me, and so many friends are telling me, telling as you can say in the chat box, your voice is not audible. Before starting the session, I was is it audible to you now? No, right now also your voice is not clear, very slow. Um, I have checked my internet. It's perfectly Yeah, fine. maybe. No, it's perfectly fine along with the audio. Before starting the session, I checked it. Okay, but I don't know what happened. The So words are I not can. clear. There are distortion. We are unable to understand the words you are speaking. Well, what can I say? At my side, everything is fine. So Okay, ma'am. this, So you can continue. uh, is it clear now? Can anyone? डॉक्टर रैना, जी जी, आप एक दफा फिर ज्वाइन कर लें। ओके। Maybe she is having some internet issue. Please stay calm. She will be. She is right here. Is it fine now, or am I audible to you all? Yes, you are audible now. Okay, that's good then. Okay. Should I give you a bird eye view of everything I said, or should I start from where I left? Anybody? Bird eye view. बर्ड आई व्यू, ओके। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें मैंने ये बताया था कि हमें डोज एडजस्टमेंट किसके लिए जरूरी है, क्योंकि बेसिक जो रिस्क होते हैं वो आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, डिहाइड्रेशन, कीटोएसिडोसिस, और यहाँ पे आपको फिर थ्रोम्बोसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ लेस वाटर। फिर हमने की रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, थ्री बॉक्स अकॉर्डिंग टू द रिस्क दैट इज प्रोवाइडेड। अच्छा, फिर इसके बाद का हमने देखा कि मैंडेटरी जो है, मैंडेटरी ब्रेकिंग ऑफ द फास्ट क्या चीज थी, जब आपके पास पेशेंट का ग्लूकोज लेवल 70 मिलीग्राम से लेस हो या फिर 300 मिलीग्राम से ज्यादा हो, तो उसमें आप पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि वो जो है मस्ट अपना फास्ट ऑब्जर्व नहीं करें। जहाँ पे आपके पास सिवियर डिहाइड्रेशन थे, क्योंकि इसमें आपके पास एसिडोसिस का बहुत ज्यादा चांस होता है, कंफ्यूजन हो सकती है, या फिर एक्यूट इलनेस की वजह से जो है आप पेशेंट को कहते हैं कि वो किसी भी सूरत फास्ट से नहीं आ सकते। फिर हमने इसके बाद देखा कि हम डोज एडजस्ट करते किस तरह है, उसके लिए हमें डोज फॉर्मूला चाहिए था, ठीक है। तो डोज एडजस्टमेंट में डोज वॉल्यूम के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज डोज पर किलोग्राम इनटू द patient that is divided by the concentration। अब इसको हम फिर फ्रीक्वेंसी के साथ जो है डिवाइड करते हैं तो आपको डोज मिल जाती है।
देन वी स्विच टू मेडिकेशन। पहली वाली हमने जो पढ़ी थी दैट वाज मेटफॉर्मिन। देयर वाज नो चेंज इन द टोटल डोज, क्योंकि आपके पास मेटफॉर्मिन जो है डिक्रीज करती है हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को, और ये इंप्रूव करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी। मार्केट में आपके पास दो तरह के मेटफॉर्मिन अवेलेबल होते हैं, एक इमीडिएट रिलीज के लिए और दूसरा होता है एक्सटेंडेड रिलीज के लिए। जो मेटफॉर्मिन इमीडिएट रिलीज के लिए होती है उसमें आप डोज टाइटर करते हैं, अवतार में 2/3 देखिए और सहूर में 1/3 देखिए, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सटेंडेड रिलीज होगी तो वो आप फुल एक ही डोज पेशेंट को दे देते हैं अवतार में। व्हाट यू कांट अंडरस्टैंड आई, so that I can make you understand. Okay. अब that was E4I inhibitor. Now DPP4. This is called as dipeptidyl peptidase 4 enzyme. This is an enzyme that breaks down the hormone GLP-1 in the body. Okay. Now you are thinking what is GLP-1? GLP-1 is glucagon-like peptide. ठीक है, ये एक हार्मोन होता है जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज होता है जब आप कुछ खा लेते हैं। तो इट स्टिमुलेट्स इंसुलिन secretion, it suppresses glucagon release and slows the gastric emptying. Now, as the name indicates, DPP4I means कि DPP4I को inhibit कर लेगा, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास देयर इज अ वेरी लो रिस्क ऑफ hypoglycemia. So no dose adjustment is needed and you have to take it after अवतार, ठीक है, या एड अवतार करने डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। मार्केट में आपके पास सीटाग्लेप्टिन इमीडिएट रिलीज की फॉर्म में अवेलेबल है इन 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम एंड 100 मिलीग्राम। तो बेसिकली आप इसमें 100 मिलीग्राम अवतार पे दे देते हैं और इसमें आप डोज चेंज नहीं करते। सल्फोनाइल यूरेज, these are secretogogues. Secretogogues का मतलब ये होता है those medicines that drugs or hormones that promote या stimulate करें वो secretion of other substance, ठीक है। तो इससे जो है आपके पास ये क्या करते हैं, these drugs they stimulate insulin secretion from the pancreas beta cell, ठीक है। अब इंसुलिन की जो ये सिक्रीशन को किस तरह इंक्रीज करेंगी, ये क्लोज कर देते हैं एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल को। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। हम बेसिकली सल्फोनाइल यूरेज को फास्टिंग में बिल्कुल भी नहीं करते, इतना ज्यादा फेवर नहीं करते हैं वो इस वजह से क्योंकि इसमें आपके पास रिस्क फैक्टर ज्यादा हो जाता है। बेसिकली मिड डे हाइपोग्लाइसीमिया बेतहाशा हो जाता है, इस वजह से आप इसको या तो डोज इसकी रिड्यूस कर दें या डोज इसकी मिनिमल या ओमिट कर दें, और फिर आफ्टर रमजान जब 2 वीक्स का आप गैप दे दें उसके बाद आप पेशेंट को फिर दोबारा जो है ये डोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। Now, the fourth is SGLT2 inhibitors. इस ड्रग में जो आते हैं they are known as the Flozin family. SGL2 it stands for sodium glucose link transporter 2. ठीक है, SGLT2 it is a protein, ठीक हो गया। अब ये क्या करते हैं कि they inhibit this protein, तो अब जब ये प्रोटीन इनहिबिट हो जाएगी then the glucose reabsorption in the proximal tubule of the kidney ये जो है ये इनहिबिट हो जाएगा, so it will lead to glucosuria, and glucosuria means having glucose in the urine of a patient, ठीक है। तो इसके लिए जो मेन फोकस होता है that is on dehydration and euglycemic DKA. DKA stands for diabetes ketoacidosis.
एसिडोसिस। ठीक है, इसके लिए जो है आप, इसके लिए जो होगा, यू हैव टू टेक इट एट अफ्तार। ठीक है, the most crucial counseling is the patient must drink at least 2.5 liters of water between aftar and suhoor. Why? Because आपको, because the patient is suffering from polyuria. पोलीयूरिया की वजह से जो है आप पेशेंट को फिर कहते हैं कि अफ्तार और सहूर के दरमियान जो है आपने, यू हैव टू टेक plenty of water. Now, the most juicy part of it is the, sorry, insulin. अब ये हमने सारी ओरल मेडिकेशन क्लियर कर दी। नाउ इंसुलिन टू, अब इंसुलिन अगर हमने किसी को देना है तो उसके लिए सबसे पहले हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसके लिए जो पहली चीज होगी दैट इज द ICR, इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट रेशियो। द सेकेंड वन इज ISF, insulin sensitivity factor. Insulin carbohydrate ratio means how much grams of carbohydrates are covered by 1 unit of rapid acting insulin. Rapid acting insulin is also known as bolus insulin. ठीक है, और इसका फॉर्मूला हम इसके लिए रूल यूज करते हैं, दैट इज नोन एज रूल 500. Rule 500 में, Rule 500 means that you have to divide the total daily dose of insulin by 500. This will give you the carbs that is covered by 1 unit. Okay? Next one, हम देखेंगे इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर, यानी कि कितना एक यूनिट इंसुलिन कितना ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप करता है. इट मीन्स how many milligram per deciliter the blood glucose will drop with 1 unit of insulin. ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1800 रूल. ठीक है, उसमें हम 1800 को डिवाइड करते हैं TDD के साथ, तो वो आपके पास पॉइंट पर ड्रॉप आ जाता है. ठीक, टू मेक इट इजी फॉर यू, एक छोटी सी क्लिनिकल एग्जांपल है. कल मेरे पास एक पेशेंट थी, तो उसकी जब मैं ये कर रही थी तो मैंने कहा आई मस्ट शेयर इट विद यू गाइस. तो 1800 था, उसको 50 यूनिट्स चाहिए थे. ठीक है, तो 1800 को हमने डिवाइड किया 50 पे, दैट गिव्स अस 36 यूनिट्स. ठीक, दैट मींस कि 1 यूनिट ऑफ इंसुलिन विल ड्रॉप हर ब्लड शुगर लेवल बाय 36 मिलीग्राम. ठीक, तो उनके लिए अगर आपके पास शुगर किसी भी चीज में 200 है और आपका टारगेट 150 है जो आपने पेशेंट को देना है, then you have to titrate according to this formula. आजकल सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा हैं एंड आजकल तो लिटरली बहुत आसानी हो गई है टू कैलकुलेट एंड टू प्रेस्क्राइब. ओके, फॉर योर इजीनेस, जो भी जितनी ग्लिचिंग वगैरह हुई, तो आई हैव मेड 3 to 4 slides for you so that it will be easy for you to understand and cover all the things which I have said previously. ठीक है, इसमें जो आपके पास थी बेसल लेंटिस जो होती है, ये these are बैकग्राउंड सपोर्ट. बैकग्राउंड सपोर्ट का मतलब ये है कि इट इज एन इंसुलिन एनालॉग. ये प्रोड्यूस होती है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से. These are purely soluble in the acidic pH, that is the 4, क्योंकि वो आफ्टर जो है जब ब्लड लेवल आपका पेशेंट का जो है एसिडिक होने लगे तो दे स्टिल दे सर्वाइव. ठीक है, एक इंजेक्शन में सबकुटेनियसली, सबकुटेनियस का मतलब होता है कि आप स्किन के अंदर देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस नहीं देते. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे फॉर्म माइक्रो प्रेसिपिटेट्स. अब जब माइक्रो प्रेसिपिटेट्स ये बना लेते हैं तो स्लोली जो है इंसुलिन ओवर 24 आवर्स जो है इंसुलिन की सिक्रीशन जारी रहती है और इससे प्रोनाउंस स्पीड नहीं बनती. दैट मींस इट हैज अ थिकनेस कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल. तो इसके लिए हम हमेशा इसको इफ्तार में देते हैं. ठीक है, और द डोज इज डिक्रीज बाय 15 to 20%. ठीक है, टू प्रिवेंट, अब इसके रीजन क्यों है कि हम इसको अफ्तार में देते हैं, टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि जो बेसिक होता है फॉर अ डायबिटिक पेशेंट
होता है कि फोकस यही होता है कि हम मिड टाइम हाइपोग्लाइसीमिया जो है उसको हम किसी तरह जो है उसको हम किसी भी तरह जो है लोअर डाउन कर सकें। सेकेंड वन, इंटरमीडिएट में आपके पास दो तरीके की आती है, एक आती है डिस्प्रो रैपिड जो आप अस्पताल में देते हैं और एक आती है जो आप सहूर में देते हैं। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट जो होती हैं दे कवर द ग्लूकोज स्पाइक फ्रॉम द मील इटसेल्फ, दे आर मील डिपेंडेंट। ठीक है, जब आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जितना भी रिलीज होता है, अब सारी बात है डायबिटिक पेशेंट के पास, डायबिटिक पेशेंट के पास जो है ये इंसुलिन क्योंकि होती नहीं है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि आपको ग्लूकोज पाइप को कन्वर्ट करने के लिए दे आर यूज्ड, दे आर मॉडिफाइड ह्यूमन इंसुलिन मॉलिक्यूल्स दैट डिसोसिएट रैपिडली। ये क्या करते हैं, मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब आप इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। ठीक, इसका ऑनसेट 5 to 15 मिनट्स होता है और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है दैट इज 2 to 4 आवर्स। ठीक, अब जो मिक्स होती है, मिक्स इंसुलिन इज नोन एज बाइफेजिक। ठीक, मिक्स इंसुलिन इज नोन एज बाइफेजिक और प्रीमिक्स इंसुलिन। इसमें आपके पास फिक्स रेशियो होता है रैपिड एक्शन इंसुलिन का और साथ में इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का। इंटरमीडिएट इंसुलिन जो है दैट इज नोन एज एनपीएच, न्यूट्रल प्रोटेनिल एगोनिस्ट। ठीक है, it provides a dual release profile. तो बेसिकली इसमें जो है ये टेबल है, इसमें मैंने फिर यही बताया आप लोगों को कि जो कवर लार्ज कोर्स इफेक्टिंग ग्लूकोज स्पाइक्स आफ्टर अवतार मील है। ठीक हो गया। फिर सेकंड वन में आपके पास डिक्रीज डोज मिलेंगे 25 to 50%, तो प्रिवेंट करेगा ये हाइपोग्लाइसीमिया ड्यूरिंग द डे नाइट फास्टिंग आवर्स। ठीक, अब जब आप मिक्स देते हैं तो वो आप नॉर्मल डोज देते हैं। ठीक, और ये आप इफ्तार में देते हैं टू कवर इमीडिएट मील द फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम। एनपीएच जो है वो इंटरमीडिएट हम इस वजह से नहीं देते क्योंकि एनपीएच की जो पीक होती है वो प्रिडिक्टेबल नहीं होती है। तो 4 to 8 आवर्स आप किसी बंदे को डायबिटिक पेशेंट हो आप Excuse me, you are not clear. You are not audible. Voice is very slow. और माय आधे लोग जो है उनको सही समझ पा रहे हैं, आधे समझ पा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों ने ओरल एंटी डायबिटिक देखी थी, उसके लिए अच्छी शीट फॉर यू गाइस। ठीक है, इसमें फॉर्मेट जो है मेटफॉर्मिन एक्सटेंडेड रिलीज है या फिर Dr. Anam, please check your mic. I don't know what's the problem. Am I audible to you now, guys? Am I clear? No, Dr. Anam, unfortunately, you're not. When the net is stable and mic is good also. Now, is it fine? Yes. Okay, that's sorry, please. अच्छा, अब जो है DAP inhibitors के लिए ड्रग लैप्टेंस के इमीडिएट रिलीज होगा क्योंकि आपकी जो है फॉर्मुलेशन ये सारा टेबल आपको ये शो कर रहा है कि ड्रग का नेचर क्या है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है रमजान के लिए। ठीक, नाउ if we are giving an insulin, अगर हम इंसुलिन कॉम्बिनेशन दे रहे हैं किसी पेशेंट को,
तो उसके लिए बेसल बोलस इज बेसल बोलस जो है दैट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। इट मींस कि एक जो है दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड व्हाई बिकॉज इट इज इजी टू एक्सेस। ठीक हो गया। मिक्स अलोन अगर आप देंगे तो वो कॉमनली हम देते तो है बट स्टिल रिस्की थिंग्स होती है। थर्ड वन इज mix plus bolus, mix pen and extra bolus। दैट मीन्स इसको हम इस वजह से नहीं देते क्योंकि ये स्टैकिंग होती है रमजान में। ठीक है। मिक्स जो क्योंकि ये 70-30 का रेशियो होता है तो 70% जब आप ऑलरेडी एक दे रहे हैं मिक्स में जो कि बोलस की तरह इंसुलिन काम करती है दैट इज ग्लूकोज फ्रेंडली, तो आप जब एक्स्ट्रा बोलस उसको दे देंगे तो मेडिकली दैट इज नोन एज स्टैकिंग। तो स्टैकिंग को रोकने के लिए हम मिक्स और बोलस की कॉम्बिनेशन नहीं करते। Now, the management of insulin and oral medication. As you all know कि हमारे पास जो है अगर हम सिंगल ओरल मेडिकेशन देंगे तो दैट इज डेंजरस फॉर अस। ठीक हो गया। इसलिए हम इंसुलिन और ओरल मेडिकेशन की अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो मेटफॉर्मिन और इंसुलिन देंगे तो देयर इज नो चेंज इन द टोटल डोज। ठीक है। मेटफॉर्मिन पे चूंकि आप पीरियड्स देते हो दिन में 3 टाइम्स देनी होती है तो वो आप फिर उसको स्टेट करते हैं। ठीक। सेकेंड वन में डीबीटी फॉर आई सीटाग्लिप्टिन और इंसुलिन की अगर आप कॉम्बिनेशन करेंगे तो देन देयर विल बी नो चेंज। यू हैव टू टेक इट एट आफ्टर इट इज अ हाई सेफ्टी प्रोफाइल। ठीक। अगर सेफ उस पर जाना चाहते हैं तो इंसुलिन मे और मे नॉट ऑफ रिड्यूस कर सकते हैं, इट इज अप टू। नेक्स्ट वन इज SGLT2I inhibitors की कॉम्बिनेशन इंसुलिन के साथ। SGLT2 की भी जो इसकी कॉम्बिनेशन है इसमें भी आपको चेंज की जरूरत नहीं पड़ती है। यू हैव टू टेक इट एट अफ्तार और इसमें जो है देयर इज द हाई रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन बिकॉज ऑफ पोलीयूरिया। ठीक है। तो उस वजह से जो है आप इसकी इंसुलिन को रिड्यूस करते हैं टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसीमिया। लास्ट वन सल्फोनाइल यूरिया को इंसुलिन के साथ अगर आप पेशेंट को कंबाइन करके दे रहे हैं तो दैट इज सुपर डेंजरस। ठीक है। क्योंकि ये दोनों सिरेटोगॉल्स हैं, ये दोनों इंसुलिन की सिक्रीशन को ज्यादा कर देंगे जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट बेतहाशा हो जाएगा। इसलिए ड्यूरिंग रमजान आप जो है कोशिश करेंगे अवॉइड करें कि आप सल्फोनाइल यूरिया पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करें। Now, if we only take oral medication in combination, ठीक है, तो फिर मेटफॉर्मिन के साथ डाइपेप्टाइडेज 4I इनहिबिटर्स अगर आप यूज करते हैं तो ये मार्केट में नेम आता है जेन्युमेट के नाम से। ठीक है। इसमें आपको डोज रिडक्शन की जरूरत नहीं होती है, आप अफ्तार पे और सहूर पे दोनों पे जो है पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। ये इस वजह से होता है क्योंकि दोनों का वेरी लो हाइपोग्लाइसेमिक रिस्क होता है। ठीक हो गया। सेकेंड वन में इफ मेटफॉर्मिन को आप SGLT2I इनहिबिटर्स के साथ लें जिसकी एग्जांपल मार्केट में कार्डेंस डियो के नाम से है। ठीक है। ये भी दोनों सेफ कॉम्बिनेशन में आती हैं इसलिए इसको डोज रिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। यू हैव टू टेक इट एट अफ्तार। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब SGLT2 आप जब भी आप देखें तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही चीज आनी चाहिए, इट कॉजेज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है। और कीटोएसिडोसिस के साथ किडनी का जो है ऑलरेडी वेन्यूरेबल होती है डायबिटिक पेशेंट पे, तो फिर उसके साथ इफेक्ट इसका डबल हो सकता है। ठीक है। तो इट मस्ट बी टेकन एट अफ्तार टू इंश्योर हाइड्रेशन ड्यूरिंग द नाइट। ठीक। मेटफॉर्मिन को अगर हम सल्फोनाइल यूरेस के साथ लेते तो इसकी जो मार्केट में अवेलेबल है वो नाम है ग्लूकावेंस। ठीक है। इसमें सुपर हाई रिस्क होता है इसलिए आप मेटफॉर्मिन को स्प्लिट कर दें, या तो फिर आप रिमूव कर दें या ओमिट कर दें सल्फोनाइल यूरेस को सुहूर में। ठीक है। इट इज अ
component that is danger during the fast. अब ट्रिपल थेरेपी, अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट के बहुत ही हालात खराब है तो ट्रिपल थेरेपी में आप मेटफॉर्मिन देते हैं, DDP4 आई देते हैं और SGLT2 आई देते हैं. ठीक है, आई मीन्स इनहिबिटर. So there is a moderate risk है, you have to take it at a start. और आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है फॉर डिहाइड्रेशन एंड डीके. इन एनी केस सिनेरियो, अगर आपके पास किसी भी किस्म का पेशेंट आता है, आप उसका पेशेंट चार्ट देखते हैं और उसमें आपको लगता है कि जो ड्रग्स उन्होंने, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 से 3 या 4 ड्रग्स उन्होंने कंबाइन उसमें दी हुई होती है, तो उसमें आप शीट यही है कि आप सबसे पहले उसमें देखेंगे सल्फोनाइल यूरिया कौन सा है, और अगर रमजान है तो आप उसको इंसर्ट कर दें. पेशेंट को आप कहें आफ्टर 2 to 3 weeks जो है, या 2 to 3 weeks बिफोर आप इसकी मेडिकेशन रिजीम चेंज करके, ताकि बॉडी जो है वो उसके हिसाब से जो है एडजस्ट कर सके. ठीक है. नाउ द बेसिक एरियाज. ठीक है, अब जो एरियाज थे वो, जिस तरह हमने शुरू में कहा कि रिस्क फैक्टर था, तो उसमें सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया था. अब हाइपोग्लाइसीमिया प्राइमरी जो होता है वो आप सल्फोनाइल यूरिया के साथ देखते हैं या फिर इंसुलिन के साथ. ठीक है, ये उस वक्त होगा जब आप डोज टाइटर नहीं करेंगे सुबह में. ठीक हो गया, क्योंकि मिड जो मिड टाइम जो होगा उसमें हाइपोग्लाइसीमिया, उसमें जो है ग्लूकोज इंसुलिन जो होगा वो रिलीज होता रहेगा थ्रू दिस ड्रग्स. एंड जो हाइपोग्लाइसीमिया है उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो पेशेंट को फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है. बेसिक साइंस फॉर हाइपोग्लाइसीमिया आर ट्रिमर, palpitation, sweating हो या कंफ्यूजन हो. palpitation का मतलब होता है कि हार्ट बीट जो है आपकी इंक्रीज हो गई है. ठीक है, ट्रिमर्स का मतलब होता है कि पेशेंट को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं. स्वेटिंग, देयर इज अ प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है उसमें. ठीक हो गया, तो इसके लिए यही है कि आप जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, आप उसको इमीडिएटली जो है नोटिफाई करें, और ताकि वो जो है एडजस्ट कर सके डोज नेक्स्ट डे डोज के साथ. ठीक है. सेकेंड वन इज एक्यूट किडनी इंजरी. ऐसी भी जो है डायबिटिक पेशेंट्स वो तो दे आर वल्नरेबल टू किडनी. ठीक हो गया ना, किडनी इंजरी के लिए. तो जब आप कॉम्बिनेशन हो प्रोलॉन्ग फास्टिंग की, ठीक है, साथ में आप जो है डायरेक्टिक्स दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है किडनी की इंजरी बहुत ज्यादा मतलब जो चीजें हैं वो अच्छी खासी जो है फिर इंजरी की तरफ जाने लगती है. तो इसके लिए जो है आपके जो साइंस होंगे, क्लिनिकल साइंस, आप कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई कि एक्यूट किडनी इंजरी की तरफ पेशेंट जा रहा है. उसके लिए आप डिक्रीज करें यूरिन आउटपुट को. जब जब आप सॉरी जब पता चले कि देयर इज अ डिक्रीज यूरिन आउटपुट, इट इज एन एक्सट्रीम लेथार्जी टू द पेशेंट एंड इट इज इन हाइपोटेंशन. तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि सीरम क्रिएटिनिन मॉनिटर करते हैं. ठीक हो गया, फिर क्रिएटिनिन मॉनिटरिंग के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं. तो इसको हम कर लेते हैं क्योंकि प्रॉपर फॉर्मूला है, तो अभी थोड़ी सी इसमें आप लोग गड़बड़ा गए थे, तो ज्यादा टफ हो जाना है. तो अच्छा, अब जो थर्ड वन है यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है. उसके लिए जो होगा ये एसोसिएट ऑब्वियसली होगा SGLT2 इनहिबिटर्स के साथ. ठीक, तो ब्लड शुगर में अपीयर नॉर्मल है. ठीक, that is under 250 milligram per deciliter. But the patient it is in metabolic acidosis. क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है, साथ में इसकी डिहाइड्रेशन होती है. क्लिनिकल साइंस उसमें आपके पास आते हैं नोजिया, वॉमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन. इन 3 चीजों के लिए जब भी कोई इस तरह का हो तो यू हैव टू मॉनिटर द एरियाज, और उसके बाद जो है आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जिन्होंने ये प्रिस्क्राइब किए आपको मेडिसिन, आप उनसे जाके कंसल्ट करें, और फिर वो आपको डोज अकॉर्डिंगली टाइटर करके दे दें. Now, the summary of this session was that individualized plans are the key. Frequent monitoring, this saves lives and empower your patients with the right timing and dosage. And keep this at mind. Okay, whenever you have to treat a patient, you will give the patient the right dose at the right time to the right. Now, thank you so much for bearing this with me. And if you guys have any kind of questions, and please ask me. And sorry for the disturbance that occurred prior.
एक्सक्यूज मी डॉक्टर अनम, जो आपने डोज वॉल्यूम के फॉर्मूलाज स्टार्टिंग में शेयर किए थे वो दोबारा एक्सप्लेन कर दें अगर। जी श्योर। डोज कैलकुलेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर ये मिलीलीटर्स में है तो उसके लिए आप डोज वॉल्यूम, इट इज काउंटेड बाय डोज पर किलोग्राम इनटू द वेट ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। अब डोज पर किलोग्राम और वेट को आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे जो फैक्टर आता है दैट इज डिवाइडेड विद द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि आप मेडिसिन पेशेंट को उसमें दे रहे हैं, पीडी दे रहे हैं, ओडी दे रहे हैं, तो उसके साथ आप फिर इसको डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगी उसके साथ आप डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन को, विद दैट विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर द डोज। वैसे आजकल जो सॉफ्टवेयर देयर आर अवेलेबल, तो इट इज वेरी इजी आजकल डोज कैलकुलेशन इन क्लिनिक। एनी मोर क्वेश्चंस? और इंसुलिन सेंसिटिविटी वाले फॉर्मूलाज जो हैं वो भी किस केस में एप्लीकेबल है, मतलब वो थोड़ा सा वो भी क्लियर है। यस, ये वाला। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट, ये जो रेशो है, ये हम इंसुलिन की जब यूनिट्स करने लगते हैं ना डिफाइन किसी भी पेशेंट के लिए, तो हम उसके लिए जो होते हैं दो तरह के फॉर्मूलाज यूज करते हैं, रूल 500 एंड रूल 800। तो जो रूल 500 होगा, आपने उसकी जो टोटल डेली डोज होती है इंसुलिन की, उसके साथ आप इसको डिवाइड कर देते हो तो आपको पता चल जाता है कि कितने कार्ब्स जो है एक यूनिट में कवर हो सकते हैं। तो जो पेशेंट होगा वो फिर कार्ब कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, वो कार्ब कैलकुलेटर के थ्रू जो है अपनी डाइट को उस हिसाब से कंट्रोल करता है। तो एज यू ऑल नो कि ये एक कंप्लीट ज्वाइंट सेशन होता है जिसमें आपके पास न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट की टीम होती है, तो वो फिर मिलकर चार्ट अकॉर्डिंगली बना लेते हैं। नेक्स्ट वन जो है वो था इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर का और कोरिलेशन फैक्टर का। तो उसमें भी यही है कि अब जब आपने इंसुलिन यूनिट किसी के लिए मुख्तस कर दिया है तो वो ब्लड ग्लूकोज पे उस एक यूनिट का कितना फर्क पड़ेगा, तो इसके लिए हम 1800 का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, जिससे बोलने से रूल 1800। तो वो 1800 के साथ जो है आप डिवाइड कर देंगे टोटल डेली डोज को, तो वो आपको पॉइंट्स पर यूनिट पता चल जाएगा कि इतने पॉइंट्स जो है वो इंसुलिन के जो है वो आप पेशेंट को देंगे और ये पेशेंट के लिए सेफ होगा। एनी मोर? Any more questions? Or if you guys want, I can share another sheet which I made it for you all. तो एडमिन से बात करिए, किसी को चाहिए तो दे कैन कॉन्टेक्ट द मैथ स्पार्कल्स, तो आई कैन शेयर विद यू एंड आई वुड रियली हेल्प कि किसी को जो है तो थोड़ा सा भी हेल्प हो जाए, तो इट विल बी ग्रेट ऑनर फॉर मी। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Anam, for the insightful session. अपनी वेरीफाइड ई सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको 5 में से 4 सवालात के जवाब देने होंगे। क्विज का लिंक यूट्यूब वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जो कि अब से कुछ देर बाद मिथ स्पार्कल्स के ऑफिशियल चैनल पे भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने मिथ स्पार्कल्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां से आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी सर्टिफिकेट को आप चाहें तो आप प्रिंट करवा सकते हैं, या आप चाहे तो आप उसको पीडीएफ में या इमेज के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। Please make sure to attempt within the given time to secure your certificate and stay connected for upcoming workshops, courses, and webinars. On the behalf of MedSparkles, I would like to extend our heartfelt gratitude to Dr. Anam Afzal for sharing her valuable knowledge and expertise with us today. And a big thank you to all the participants for joining and making this session interactive and meaningful. We hope this webinar added to your clinical understanding and will help you in your professional practice. Stay connected with MedSparkles for more educational sessions, courses, and opportunities. Until next time, take care, Allah Hafiz, and have a great day.